First of all, remember, Playwright is open source and developed by Microsoft. Okay. So major advantage that it is developed by Microsoft. Got it? So open source Yes. developed by Microsoft means it has most of the support. Okay, fine. Yes. Second thing, it has its own waiting things. That is, it has an auto wait facility. What is the use of auto wait? So auto wait is, if in Selenium, what we used to have, we have to have implicit wait, explicit wait. Okay, but Okay. here we don't have such things. Mm-hmm. Okay, here we don't have any such things. Here it actually gives time, say 30 seconds to open your what you call page, web browser, 0 second or 2 seconds to click any elements. So it has a totally auto wait facility. Mm-hmm. Second, it is an open source and cost effective, that you know. Okay. Okay. Next, it is support multiple browsers. It support multiple browsers. So what all support browser it is supporting? It support Google Chrome. It support Firefox. It support Edge. It support Safari. Okay. Next advantage is that it support multiple operating systems. It supports multiple operating systems. Windows, Mac, OS, Linux. Okay. Mm-hmm. So they are the basic major advantages. See, it also support many browsers, but this is one of the advantage or what kind of benefit of it. Okay. Okay. Mm-hmm. Next, we have a parallel execution. It support us parallel execution. Okay. Now, there there is a difference. Can you write these 5 points? I will show you the structure of them. Just write it down. Okay. Talent. Yeah. Then we will start the coding and all these things. Okay. Yes, I have taken this screenshot, so I will write it down later. We can. Yeah, what? I have taken the screenshot. See, that just write it out. That will be more useful. The screenshot, no, it will not work. Just give 1 minute. Sure, sure. Let me write it. Yes, then Abhinav. Then Abhinav. Now, see, there is basically a architecture comparison. Okay. So, Selenium and Playwright have some architecture comparison. Okay. Okay. Architecture comparisons.
Abhinav, if you are saying something, your voice is not audible. No. So if you call out now, can you hear me? Yes, Now, I can. if you talk about Selenium architecture, Hmm? okay, we have W3C WebDriver architecture. Don't have to remember so many things. Okay, but it has W3C architecture. So what is basically this W3C architecture means? So this architecture, we use web drivers. We use web drivers. Means web drivers are जैसे अपने होते हैं ना, क्रोम को लॉन्च करना है तो उसका वेब ड्राइवर डालना पड़ेगा, फायरफॉक्स को लॉन्च करना है तो उसका वेब ड्राइवर डालना। तो यहाँ पे अपन को किसी भी ब्राउजर को लॉन्च करना है ना, तो उसका अपन को वेब ड्राइवर डालना जरूरी होता है। ओके, तो उसको वेब ड्राइवर डालना बहुत जरूरी होता है। सो ये होता है आपका डब्ल्यू वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल। सो हियर वी हैव टू हैव वेब ड्राइवर। और जो आपका ये प्लेराइट होता है, ये होता है आपका सॉकेट लेयर पे काम करता है। सो यहाँ आपको वेब ड्राइवर नहीं डालना पड़ता। ओके, तो आप प्लेराइट का जो आर्किटेक्चर होता है, कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं क्या आर्किटेक्चर है, तो आपको बताना है वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर होता है वेब सॉकेट आर्किटेक्चर। ओके, यहाँ आपको वेब ड्राइवर नहीं डालना पड़ता। ये क्या करता है, डायरेक्ट ब्रिज बना देता है। क्या करता है, डायरेक्ट ब्रिज बना देते हैं, और जिससे कि आप कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हो। तो इस कारण क्या होता है, प्ले राइट के अंदर जो आपकी फैसिलिटी होती है ना कम्युनिकेशन की, वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू सिलेनियम। Selenium. Okay. It means Selenium पहले वेब ड्राइवर को कोई कमांड करें then it will run और यस, playwright वेब ड्राइवर जाकर के ब्राउजर पे डालेगा तो रन करेगा। यहाँ क्या होगा, डायरेक्टली बात कर लेगा, ब्रिज बन जाएगा। yes yes 1 मिनट दे रहा हूँ, एक बार इसको लिखो आप, मैं टाइम देता रहूंगा बीच में। एक्चुअली मैंने साथ साथ लिख लिया, है, साथ साथ ही नोट डाउन कर दिया। चलो गुड। अब एक है ना गूगल, अब अपनी शेयर करो स्क्रीन, हाँ हाँ है ना, और गूगल पे जाओ और उस पे नोट डाउनलोड नोट जेएस ढूंढो। एक्चुअली अभी ना उसके लिए मुझे ना नोट जेएस के लिए मैंने बोल दिया है ऑफिस में, तो मैंने टिकट, एक्चुअली मेरा पर्सनल लैपटॉप नहीं है तो उसके लिए ना मुझे आईटी टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला मंडे को करेंगे। जो अपन को नोट जेएस करना पड़ेगा, प्ले राइट करना पड़ेगा। हाँ, एक ये सारी चीजों की लिस्ट मेरे को आज आपसे लेनी थी। आप मुझे आज सारा लिस्ट बता दो तो मैं इसको आईटी पे टिकट रेस कर दूंगी, सब कुछ इंस्टॉल करवा दूंगी। ठीक है, बता दो पर नोट जेएस प्लेराइट। तो आपको जो जो चाहिए ना उनके बारे में पहले बता रहा हूँ। हम्म। सबसे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। सबसे पहले आपको डालना है, इंस्टॉल करना है नोट जेएस। यस। ठीक है, ओके। बच्चा कितना बड़ा है आपका? हाँ 8 मंथ्स का है। 8 मंथ्स? हाँ जी। बहुत छोटा। हाँ डॉट जेएस पे जाओ, इसको डाउनलोड लिखो, है ना। ओके। तो यहाँ जाके MSI दिखेगा आपको, विंडोज इंस्टॉलर। आपकी ओके, स्क्रीन में ही शेयर है। तो क्या आपकी शेयर करवाई ना मैंने भी? हाँ तो आपके ऊपर तो बहुत ड्यू हो जाएगा अगर आज मैं कराता हूँ, कल कुछ कराता हूँ, तो आप प्रैक्टिस कर लोगे मंडे को? हाँ मंडे को कल अभी अपन थियोरेटिकल पार्ट कवर नहीं कर सकते हैं क्या? थ्योरी तो बहुत कम है, पर प्रैक्टिकल है। ओके। हम्म हाँ बट मैं मंडे को कर लूंगी क्योंकि अभी मेरे पास ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं है ना, तो ऑफिस का सारा टाइम मुझे इधर लर्निंग में ही देना है। ठीक है,
और मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कहूंगा कि कॉपी में जरूर प्रैक्टिस कर लेना अभी, श्योर है ना। श्योर। तो यहाँ जाकर के ये विंडो इंस्टॉलर आएगा, ठीक है। तो अपन को LTS लेना है, नोड जेएस LTS, ओके। ठीक है। अरे हाँ हाँ। LTS लेना है, नोड जेएस। तो ये क्या लेटेस्ट वर्जन होता है, ये क्या लेटेस्ट वर्जन होता है, फाइन। ओके। एक तो ये करना है, इंस्टॉल करना है इसको। सेकंड आपको फिर करना है विजुअल स्टूडियो कोड, ओके VS को। ठीक है। सेकंड आपको VS कोड करना है। जब आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाए, ओके, ओके। मैं स्टेप दे रहा हूँ आपको सारे, यहाँ जाओ आप। यहाँ मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बनाना। टाइप, सबसे पहले अपन टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे, तो इस ओके। फोल्डर को ओपन करना आप, है ना। हाँ। ओके, मैं सारे स्टेप्स देखते रहना जैसे मैं बता रहा हूँ। एक मिनट। हाँ। अब यहाँ अगर कहीं ब्लॉक करे ना तुम्हारा, अब यहाँ क्या टर्मिनल में जाना, न्यू टर्मिनल, ओके। अभिनव जस्ट गिव मी अ मिनट ना, कोई आया डोर। यस अभिनव आई एम बैक। सिर्फ आज का ही ऐसा रहेगा, बाकी उसके बाद मैं घर शिफ्ट हो जाऊंगी तो इट ठीक विल है। नॉट। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर अपन को इंस्टॉलेशन डालना पड़ेगा, भाई। अपन को सबसे पहले क्या करना है, अपना टाइप स्क्रिप्ट का इंस्टॉलेशन करना है। सो आप है ना ऑफिस में, या उनसे मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा, तो आपको इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ आपको मेरा चाहे वीडियो देख लेना, npm इंस्टॉल -d टाइप स्क्रिप्ट ts/, ओके, ये कमांड देना, एंटर करना। ओके। ओके, तो देखो ये इंस्टॉलेशन चालू कर देगा, एडेड 20 पैकेज, ओके। अब ओके। ये देखो, ये आपका ये पैकेज जेसन वगैरह बन के आएगा, ओके। यहाँ जाकर के पहली फाइल बना कर देखेंगे अपन, उसका नाम देंगे demo.ts, ओके। और मैं यार आपको रन करके देखना आपका प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है नहीं लिया, तो उसके लिए एक अपन देते हैं console.log हेलो टाइप स्क्रिप्ट, ओके। मैंने यहाँ प्रिंट किया। अब अपन ओके। इसको रन करके देखते हैं, तो इसको रन कैसे करते हैं, npx es -node and our file name is demo.ts, मैंने रन किया।
अब इसने हाँ। एरर दिखाया है मेरे को हम्म। कि अननोन फाइल टी एस डी ई एम ओ, जस्ट अ सेकंड, वाइट इज शोइंग एरर, लेट मी चेक। अपन ने ये क्या किया यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड। सॉरी सॉरी, मैंने पूरा कमांड नहीं दिया। अपन को कमांड देना है डेमो टी एस एन पी एक्स, ओके। मैंने कमांड दिया, सेकंड, एन पी ए प्रीति पी, स्मॉल में क्यों ले रहा है? ओके, दिस कमांड एन पी एक्स, ओके, पी एस एक्स डेमो डॉट। अभिनव, ये वाले देखो ये रन। कमांड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? हम्म। ये जो कमांड आपने डाला है, ये ऐसे कमांड्स कहाँ से मिलते हैं? ये ऑलरेडी कुछ अपन को सीखने को ये मिल रन रहा है करने के क्या? काम आते हैं, रन करने के काम आते हैं ये। ओके। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले ये वाला कमांड मत देना, ये आपके चलेगा नहीं, हो सकता है। सबसे पहले तो इंस्टॉल करना है आपको टाइप स्क्रिप्ट npx इंस्टॉल माइनस डी टाइप स्क्रिप्ट टीएस नोड। उसके बाद कमांड देना है npx टाइप स्क्रिप्ट, होता है tsx का मतलब डेमो डॉट टीएस। तो मेरी फाइल का नाम क्या है, डेमो। और मैंने किया, और मैंने केवल प्रिंट करा के देखा कंसोल डॉट लॉग, हेलो टाइप स्क्रिप्ट प्रिंट कर रहा है नहीं कर रहा, और प्रिंट कर रहा है। ओके। क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ, बाकी और आई थिंक आई हैव टू सी द वीडियो। देखना पड़ेगा। ओके। अब यहाँ फाइलें कैसे बनती है, ये जो जाओगे ना यहाँ पे, यहाँ से एक एक फाइल बनती है। एक एक फाइल कैसे बनती है, ये यहाँ क्लिक करके, अगर यहाँ क्लिक करूंगा तो एक फाइल बनेगी। यहाँ क्लिक फाइल। किया मैंने, तो मैं अगर हूँ प्रिंट फाइल डॉट टी एस दिया मैंने उसका नाम। टी एस एक्सटेंशन देना पड़ेगा आपको। ओके, हर ठीक फाइल है। पे। हाँ, अगर मैं प्रिंट कराता हूँ मानो कंसोल डॉट लॉग से, क्या मैं प्रिंटिंग के लिए काम आता है, कंसोल डॉट लॉग, हेलो टाइप स्क्रिप्ट प्रिंट किया। मैंने मानो 5 बार प्रिंट कर, डबल कोट्स में क्या होता है, स्ट्रिंग प्रिंट होती है, डबल कोट्स में स्ट्रिंग। ओके, मैंने 5 बार प्रिंट किया। ठीक है, 6 बार। सेव करता हूँ, रन कैसे करेंगे, एन पी एक्स टी एस एक्स बी ई एम ओ डॉट। देखो, अरे मैंने फाइल का नाम क्या है, प्रिंट है, प्रिंट फाइल है। हम्म। 5 बार इसमें print। ठीक है, आप कितनी बार भी ये कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट कर सकते हैं। समझ में आया ये आपको? हम्म। यस और नो? यस यस। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स, चेंजिंग वैल्यूज, लाइक डेटा के साथ वैल्यू चेंज होती है। अगर मानो मैं एक वेरिएबल। वेरिएबल बनाता हूँ लेट, अभी मैंने आपको बताऊंगा ये लेट क्या होता है, ये क्या होता है, नंबर ओके। क्या होता है। मैं लेट कॉन्स्ट वगैरह में बताऊंगा। लेट टोटल कॉलन नंबर इक्वल टू 0, कंसोल डॉट लॉग, सेव करता हूँ इसको। ओके, उसके बाद जा करके मैं इसको रन करता हूँ। तो ये क्या किया मैंने, एक नंबर इसके अंदर जाके सेव कर दिया। ओके, टोटल क्या है, एक वेरिएबल का नाम है। टोटल क्या है, वेरिएबल का वेरिएबल नाम है, और उसकी टाइप क्या है, नंबर, और उसमें नंबर। वैल्यू क्या है, 0। अब देखो, जब मैं टोटल दे रहा हूँ तो डबल कोट्स नहीं दूंगा। अगर मैं डबल कोट्स दे दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। यस। है ना। अब मैं रन करता हूँ इसको, बढ़िया, इसने 0 प्रिंट कर दिया, कोई इशू नहीं, है ना। तो ये ओके। एक वेरिएबल है, ये उसका डेटा टाइप है, और ये उसमें वैल्यू डालना। वैल्यू। अब अपने पास 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। एक होता है वैर, एक होता है कॉन्स्ट, एक सेकंड,
Sorry. Actually, there was some exam is going on. I used to be my one of my personal leaves. I used to be. So there was some question confusion. So that's why I was calling. Okay, so we have three types of it. Where, so see, where has block scope. It has a scope which is block. Block. What is block? So if we have a if else condition, if else, so that is a block. Okay, if we write anything in curly braces, sorry, scope block is function. Function, sorry. Where has a function scope? Okay. Function scope means now it will exist. If I declare a variable over here, it will exist in my complete program. So it is completely function scope. Okay. So it is a function scope. Fine. We have a function scope. Next, we have a const. It is a block scope. Hmm. Block scope means it will be in the braces. Okay. It will be only in the braces where it is defined. Okay. And another is basically, yeah. Yes, please tell, you are asking anything. No, I'm not saying anything. My baby is Okay. shouting. And next is let. Next is let. Let is also your block scope. Okay. So where is function, const is block, and let is also blocks. Block. Okay. Second is that in where
Reassignment is allowed. In let is also allowed. Okay, but in const it is not allowed. Why so? Because const and let both are the same kind of variable, no? Block kind of variable. Just check it out. Just wait. Give me 1 minute. Okay. And there is known as redeclaration, which is allowed in your where. In const it is not allowed, and in let is also not allowed. So what is your question? No, no. Now it's okay. But earlier you said now for the let it is allowed. That's why I did. Okay. So now you have major differences, right? So const is, have you studied about the word static? Hmm. Do you know the word static? Word static, I don't know, but in if we talk about static, I think it is a fixed value or something like this. Yes. So value is static. So it is fixed, right? So we cannot change. So const is same as static keyword, right? So it is same as static keyword. So now suppose let's create some variables. Let's see and create some variables and I will show you the difference. Suppose I create a function. Function is something which do something. Okay. Just I am explaining these things. Okay. Mm-hmm. I'm giving a function name scope demo. I will let you know the functions in detail. So I create some variables. Say I create a var. Mm-hmm. I create a variable. Say I'm creating in a function. Remember, is equal to var is equal to var. Let read var. I created a variable string type. I gave it this value. Fine, correct till now. Any issues? I created like a string. Give it like a string. Okay. Hold on. Okay. Mhm. Fine. Second variable I create var wrapped. Okay. I stuck in the I give just a string value. If I stuck a string value, I am stuck inside a if block wrapped var type. I give const. I did trapped string again. Okay. And I store a string value. Say I am also stuck inside here. Okay. So three variables I have created over here. Mhm. I have created three variables over here. Clear till now? Mhm. Now, Oh. let me try to access. So this is a block. Okay. This is a block. Function is a block. And now what I do, I come outside this function and I try to print console dot log I leave where. Okay. This let me create it as let. Next, I go and try to print console dot log. Okay. Just a second. Just a second. I go over here and give a if condition here. Just see if true. Start conjugation here and end conjugation. Just start what I say.
Okay. So what happens here? I have created a function. See, I have created a function. Can you see? Yes, yes, Yes or function no? In this, memory. I have given a condition if true. So होता क्या है, अगर ट्रू होगा ना तभी अंदर जाता है ब्लॉक में, वरना नहीं जाता। वरना Okay. एल्स कंडीशन लिखेंगे तभी आएगा। समझ में आई बात? यहाँ तक हाँ, क्लियर है? तो मैं इसमें yes. इस फंक्शन के बाहर आता हूँ और मैं सबसे पहले प्रिंट कोशिश करता हूँ कराने की इसको कंसोल डॉट वैर। Okay. Function of log. लीव वैर। ओके, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो ये मेरे को कोई, मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो रन करने के लिए क्या आपको उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो अपन यहाँ पर नहीं, ये पढ़ेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ चीजें कि ये देखो, मैंने फंक्शन की, मैं वैर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि उसका क्या फंक्शन स्कोप होता है, मैंने फंक्शन के अंदर लिखा है। तो उसके बाहर अब मैं देखो फंक्शन में ही यूज कर रहा हूँ उसको, और मैं जाके रन करता हूँ इसको। तो ये देखो, इसने मेरे को प्रिंट कर लिया, आई कैन एस्केप द इफ ब्लॉक। तो ये नीचे आके आ गया। अब मैं इसी तरीके से क्या करता हूँ, ट्रैप्ड को ब्लॉक करा प्रिंट कराता हूँ, और ट्रैप्ड कांस्टेंट को ब्लॉक प्रिंट कराता हूँ, इसको कराता हूँ Right. ट्रैप कांस्टेंट को, इन तीनों को प्रिंट कराता हूँ गया। अब तो एरर आ गया तीनों, कैन नॉट फाइंड। क्यों? क्योंकि इनका क्या है, ब्लॉक इसको Okay. कांस्टेंट ब्लॉक के अंदर है किया है, तो इसलिए इसने एरर दिया। ये बनाओ प्रोग्राम इतना सा कागज पेन से। Okay. Done, Abhinav. हो गया? Yes, yes, done. डन? विच इज डन? Yes, yes, Abhinav. ओके। So, सो यहाँ तक देखो, स्कोप का समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक, sorry. हाँ सही है। अब मैं आपको समझाता हूँ। अब अपन देखते हैं रीअसाइनमेंट। सो रीअसाइनमेंट वेयर में अलाउड है, इसको कहते हैं री Assignment. असाइनमेंट अलाउड। और ये होता है रीडिक्लेरेशन। Okay. ओके, ये भी अलाउड होता है। सो देखो, मैंने यहाँ किया वेयर, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रीअसाइन कर देता हूँ। यहाँ गया, इसमें देखो
वी आर लर्निंग फास्ट। हो गया। अब मैं इसको वापस प्रिंट कराता हूँ। ये होता है रीअसाइनमेंट। देखो, वी आर लर्निंग टाइप्स में सो रीअसाइनमेंट अलाउड है, पर यहाँ नॉट अलाउड है रीअसाइनमेंट। ठीक है, यहाँ रीडिक्लेरेशन भी नॉट अलाउड है। सो यहाँ मैंने एक नया वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट। ये इसको मैं वापस नीचे भी कर देता हूँ। यहाँ सेम टू सेम मैं नीचे वेरिएबल बना रहा हूँ। इसका नाम दूसरा दे देते हैं अपन, कॉन्स्ट, न्यू कॉन्स्ट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कॉन्स्ट को करता हूँ रीअसाइन। तो ये फाइनल की तरह होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू वी आर लर्निंग टाइप स्क्रिप्ट। तो देखो एरर आ गई, कैन नॉट असाइन न्यू कॉस्ट बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट। समझ में आया? तो इसको मैं कमेंट कर दिया। ये चीजें लिख लेना जो मैं कर रहा हूँ। उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, लेट वाले को, लेट लेट इज रीअसाइनमेंट अलाउड। तो मैं एक लेट का नया वेरिएबल निकाल बनाता हूँ बाहर, न्यू लेट, और मैं इसको वैल्यू देता हूँ न्यू लेट इज इक्वल टू वी आर लर्निंग टाइप स्क्रिप्ट। और बाहर आके मैं प्रिंट कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग न्यू लेट। सो देखो, ये अच्छा हो गया, ये हो गया। सो रीअसाइनमेंट अपना चला किस किस में, समझ में आया? यस और नो? ये असाइनमेंट अपना एक तो लेट में चला ना, और एक हाँ इधर वेरिएबल में। कॉन्स्ट के अलावा सब में चलेगा, राइट? हाँ, वो करके भी दिखाया है मैंने आपको। प्रैक्टिकली समझ में आया जो मैंने किया है? सॉरी। प्रैक्टिकली जो मैंने किया है वो समझ में आया? हेलो? हेलो? यस यस अभिनव, मैंने देखा। अरे एक्चुअली मेरा बेबी बहुत जोर से रोने लग गया। तो ऐसे तो फिर बहुत मुश्किल हो पाना। यस, 1 घंटा सुनाना ही पड़ेगा इसकी। कंटिन्यू दिस ऑन मंडे, क्योंकि कल आई विल बी ट्रेवलिंग। हैं? मंडे क्या? एक्चुअली कल आई विल बी ट्रेवलिंग टू माय होम टाउन, तो हाँ, मेरे को पढ़ने में इजी रहे, तो हम मंडे से वापस से कंटिन्यू करें। कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, क्योंकि कल पर देखो, कल मैं इसलिए सैटरडे संडे जोड़ दिया था, मैं ये नहीं चाह रहा था कि वी वर हैविंग ओनली 2 वीक्स। यस यस, नहीं नहीं, सिर्फ इसी वाले संडे को, बिकॉज कल यहाँ से मैं निकलूंगी तो मेरे को भीलवाड़ा जाना है।